Hello everyone. In this video we will discuss about the fundamental concepts of organic reaction mechanism, and over here we will try to understand by what steps or what methods different organic reactions take place and how we can understand their mechanism, and we will discuss a basic concepts of that all. Okay, and this is from class 11 chapter, but definitely this concept will help you in graduations and post graduations to study the various aspects of chemistry, and under chemistry to understand the organic chemistry part. Okay, so let's discuss. In an organic reaction, the organic molecule also referred as substrate. Why we are calling the organic molecule as substrate? Because this substrate will convert into the product when the reagent will attack on that. Okay, similarly we call substrate when enzyme act on substrate and it gives us the product. So at the place of enzymes which are active inside our body or which are active in other systems also, in vivo systems also, we will use the substrate word to organic molecule because this organic molecule is actually reactant, and when this reactant will combine with reagent, that gives you various products. The main product as well as the some other products, and which are lesser in concentration, so we call them byproduct because there will be the formations of intermediate, and how this intermediate get formed, how this intermediate convert to final product, what are the things which should be there in the reagents, which substrate is best suitable. These all concepts we will try to understand over here, right? So substrate react with an appropriate attacking reagents leads to the formations of one or more intermediates and finally the product. The general reactions which is depicted as below as follow is organic molecule, which we are saying substrate. This is very similar to reactant, and then a reagent will attack on this, and this attacking reagent lead to the formation of intermediate, and this intermediate is a short lived product. It don't have long life and it's very unstable. This intermediate will break down into the various products, and out of that we get some major product and some as a byproduct. Substrate is that reactant. substrate के बारे में बता रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है. substrate क्या है? रिएक्टेंट ही है एक तरह का, which supplies the carbon to the new bond and the other reactant is also called reagent. तो substrate एक reagent है जो कार्बन सप्लाई करता है, ठीक है, और नए बॉन्ड फॉर्मेशंस होती हैं, एंड दूसरा एक रिएक्टेंट होता है जिसको हम क्या कह देते हैं? रिएजेंट कह देते हैं मेनली, जो अपने आप में अटैकिंग नेचर का होता है, ठीक है. इफ बोथ द रिएक्टेंट सप्लाई कार्बन टू द न्यू बॉन्ड then choice is arbitrary, and in that case the molecule on which the attention is focused is called as substrate. जिस मॉलिक्यूल, जो मेन मॉलिक्यूल होता है जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शंस की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे, ठीक है. तो ये सबस्ट्रेट एक भी हो सकता है, ये सबस्ट्रेट किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. एंड बट इनका काम क्या है? इनका काम है नए बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन की सप्लाई करना, क्योंकि कार्बन इज ए बैकबोन इन ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स, राइट. नाउ वी सी नेक्स्ट. In such a reaction, equivalent bond between the two carbon or a carbon and some other atom is broken and a new bond is formed. हमेशा जब भी हम देखते हैं, for example, if there is formations of let's suppose the acetic acid from acetone or propanone, so in that case there will be some change, definitely there will be there in the formations of bond. कुछ बॉन्ड्स तो ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड बनेंगे. जो ब्रेक होंगे उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, जिसमें जो एनर्जी लगेगी. कुछ जो बॉन्ड बनेंगे उनमें बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, हीट का भी ट्रांसफर होगा. और ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, इसमें जो नया प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी, नया जो मॉलिक्यूल बनेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. ए सबसिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ द ईच स्टेप describing the detail of the electron movement, energy changes during the bond cleavage and bond formations, the rate of the formations of the reactant into the product, that we call kinetics, is referred as reaction mechanism. So if somebody asks what is reaction mechanism, how we can tell him that reaction mechanism is actually
we take each and every step of any reaction into account. That is actually actually sequential steps, one by one this take place like we are seeing over here. एंड क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर से उधर होती हैं, एनर्जीज चेंजेस होते हैं, बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, उसके अंदर एक रेट से रिएक्शंस का बनते हैं, एक रेट से रिएक्शंस के रिएक्टेंट घटते हैं और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है विद द टाइम. ठीक है, दैट वी एक्चुअली डिस्कस वेरी ब्रॉडली इन केमिकल काइनेटिक्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शंस. आप पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उस तरह से आपने देखा है. ठीक है, सो दिस वी कॉल रिएक्शन मैकेनिज्म. हम इन सब चीज़ों के बारे में ओवरऑल पढ़ते हैं तो उसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म कह देते हैं. द नॉलेज ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमें किस में हेल्प करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को समझने में, पढ़ने में रिएक्शन मैकेनिज्म हमें हेल्प करता है. ठीक है, इट्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देन कि कौन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कंपाउंड कम रिएक्टिव है. हम अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं. इफ वी वांट टू गेट सम प्रोडक्ट तो हम अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी इसके ऊपर बनाते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस हो रही हैं. ठीक है, इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी लर्न सम ऑफ द प्रिंसिपल दैट विल एक्सप्लेन हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस. राइट नाउ इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप, द breaking of the covalent bond or fission of the covalent bond, that will take place in the organic molecule that we are calling substrate. तो substrate के अंदर जो bond breaking जो पहला स्टेप है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है जी. So bond breaking कैसे हो रही है? A covalent bond can get cleaved either by two methods. कोई भी covalent bond है, let's suppose एक कोवलेंट बॉन्ड है किसके अंदर, ए और बी के अंदर. ठीक है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, वी नो दैट ईच बॉन्ड इज फाउंड बिकॉज देयर इज ए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम. ठीक है, ए और बी टू एटम्स है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया. सो वन CV दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, वन CV कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स. सो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से टूट सकते हैं. या तो लेट्स सपोज इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके चला जाएगा. ठीक है, सो दीज टू इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द बी बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सेकेंड केस, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करते हैं, ए की तरफ मूव करते हैं. सेकेंड केस. थर्ड केस इज, द थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी इफ बी एंड ए बोथ आर हैविंग सेम EN. ठीक है, इसके अंदर अगर मैं EN पर डिफ्रेंशिएट करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की EN ए से ज्यादा है. ठीक है, सेकंड केस में ए की EN बी से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है. यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, सेम है. तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा इसकी तरफ और एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसकी तरफ, ऐसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी. सो दिस वी कॉल्ड एक्चुअली, ये दो तरह का है. ठीक है, एक को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक. ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड दिस इज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. दो तरह की क्लीवेज हो रही है. ठीक है जी, अगर आप यहां ढंग से ध्यान दें तो ये जो एरो मैंने बनाई है, दिस इज ए सिंगल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो ये. ठीक है, एंड जब भी हम एरो बनाते हैं तो एरो के अंदर जो इनिशियल पॉइंट होता है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो रही है. इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो रही है और यहां से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. एरो का याद रखना है, आगे NCERT ने भी साफ साफ लिखा है इस पॉइंट. एरो का आपको याद रखना है. ठीक है, आपको अगर डबल हेडेड एरो बनानी है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर ए की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से बी की तरफ जा रहे हैं. और इसमें इसका मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है. ठीक है, ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है, होमोलाइटिक क्लीवेज है. होमोलाइटिक क्लीवेज में हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स. ठीक है, फ्री रेडिकल बनेंगे किसके अंदर, होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर. एंड under heterolytic cleavage there will be formation of two things, either carbocation or कार्बोएनाइन. ठीक है, कैटायन बनेगा या फिर कार्बोएनाइन बनेगा, दो चीजें बनेंगी इसके अंदर. और इस प्रोसेस को हम हीट्रोलाइसिस बोलते हैं और होमोलाइटिक क्लीवेज को हम होमोलाइसिस बोलते हैं. हीट्रोलाइटिक क्लीवेज होना, and this process is known as homolysis. Now we see heterolytic cleavage और heterolysis के अंदर क्या हुआ है. देखो, in heterolytic cleavage the bond breaks in such a fashion that the shared pair of the electrons remains with one of the fragment.
शेयर पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के, ये किसके साथ चले गए, सिर्फ एक फ्रेगमेंट के साथ चले गए, यहाँ पी पे चले गए, यहाँ ए पे चले गए, तो शेयर फ्रेगमेंट जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक फ्रेगमेंट के साथ चले गए। क्या होता है इसके अंदर, हेटेरोलाइसिस के बाद, आफ्टर हेटेरोलाइसिस वन एटम हैज सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर and the another a valence octet with at least one lone pair and a negative charge। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे डेफिनेटली, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग ऑन बी, तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एंड इससे ए से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस विल बी द वाइस वर्सा केस, राइट, ये समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो अगर मैं नेगेटिव वाले को देखूं तो नेगेटिव वाले के पास एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और इसके पास अब जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एलपी लॉन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इसकी वजह से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। जो पॉजिटिव वाला है इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझूं तो दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन सेक्सटेट स्टेट, और अभी इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। जैसे मेटल हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो डोनर होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है, तो ये इनसे भी डिसाइड हो गया, ये इससे भी डिसाइड हो गया। अब अगर ए, if it is A is a carbon then this will be called carbocation, if B is a carbon atom, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको हम कार्बो एनाइन बोलेंगे। कैसे, आगे देखते हैं। Thus the hydrolytic cleavage of bromomethane will give you the carbocation, that is methyl carbocation CH3 प्लस का चार्ज आपको ढंग से याद देखना है, प्लस एंड एक एनाइन बनेगा, दैट इज ब्रोमाइड एनाइन बनेगा, ठीक है, तो CH3Br है, इसका ब्रेक हुआ क्योंकि Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कंपेयर टू कार्बन, तो CH3 प्लस जो कार्बोकेटाइन बन गया, एंड ओवर हियर स्पीसीज हैविंग द कार्बन एटम पोजेसिंग द सेक्सटेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। पहले कार्बोकेटाइन से पहले हम इसको कार्बोनियम आयन बोलते थे, जैसे हम क्या बोलते हैं आज भी, वाटर के अंदर H प्लस वाटर क्या बनेगा, H3O प्लस, तो उसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, जो आर्यनियस थ्योरी ऑफ एसिड कहती है हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, तो इसको पहले हम कार्बोनियम आयन बोलते थे, आजकल इसको और ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म इसकी कार्बोकेटाइन है, राइट। सो द कार्बोकेटाइन विल फॉर्म एंड बिकॉज दिस इज ए मिथाइल कैटाइन, तो इसलिए इसको CH3 प्लस को हम बोल देते हैं मिथाइल कैटाइन और मिथाइल कार्बोनियम आयन। द कार्बोकेटाइन आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इन दैट सिमिलर फैशन वी विल क्लासिफाई द कार्बो एनाइन ऑल्सो एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी कैसे याद करो आप, जब हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि जो हमारे जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हम बात करते हैं जो हमारे अल्काइल जो ग्रुप होते हैं, जो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं उसकी जो बात करते हैं, इसी तरह से यहाँ भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोनाइन बनेंगे। पहले हम कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेदर 1, 2 और 3 कार्बन्स आर डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी formation of carbocation depending on whether 1, 2 or 3 carbons are directly attached to the positively charged carbon। कार्बन के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से कितने दूसरे कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डिसाइड करेगा, ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कार्बोकेटाइन आयन आर मिथाइल कैटाइन, और मिथाइल के ऊपर क्या है, यहां पे अगर आप देखें तो एक कैटाइन डायरेक्टली CH, एक कार्बन डायरेक्टली इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी कैटाइन बन जाएगा ये। तो जो सॉरी इथाइल जो कैटाइन है, ये इथाइल कैटाइन एक प्राइमरी कैटाइन है। मिथाइल कैटाइन कैसा था, कैसा भी नहीं, मिथाइल से तो एक भी कार्बन अटैच नहीं है डायरेक्टली, तो मिथाइल कैटाइन बस मिथाइल कैटाइन ही है, कोई प्राइमरी नहीं है, बट यहाँ पे एक कार्बन अटैच है तो इसलिए प्राइमरी है। देन हम सेकेंड बात करें, आइसोप्रोपाइल कैटाइन। आइसोप्रोपाइल कैटाइन इज ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। हाउ? एंड देन वी सी टर्शियरी ब्यूटाइल कैटाइन, इट्स ए टर्शियरी कार्बोकेटाइन। कैसे, अब हम देखते हैं, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, CH3 प्लस, ये तो मिथाइल हो गया, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये कैसा भी नहीं है, इसको सिर्फ मिथाइल कार्बोकेटाइन बोलना है, कैटाइन नहीं बोलना, मिथाइल का कार्बो वर्ड जरूर लगाना है, या मिथाइल कार्बोनियम आयन बोलना है, ठीक है। अब हम समझते हैं प्राइमरी, ये क्या है, CH3 और CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया प्राइमरी, क्या, प्राइमरी कार्बोकेटाइन,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी अगर मैं कार्बोकेटाइन ड्रॉ करूं देन इट विल बी लाइक दिस, कार्बन कार्बन कार्बन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH। तो ये हो गया क्या, दिस विल कॉल्ड एज फ्रॉम हियर, दिस विल कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो लेट मी रिपीट इट, ठीक है। मिथाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं है, इथाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी कैटाइन है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इट्स ए सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है ये दो कार्बन से अटैच है। देन टर्सरी ब्यूटाइल कैटाइन, इट इज एक्चुअली द टर्सरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, ठीक है, राइट। क्वाटरनरी कार्बोकेटाइन नहीं हो सकता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन तक हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज टर्सरी कार्बोकेटाइन। सो डोंट गेट कंफ्यूज इनटू नियोपेंटाइल, ठीक है। नियोपेंटाइल हमेशा 5 कार्बन से बनता है, नियोपेंटाइल हमेशा 5 कार्बन से बनता है। नियोपेंटाइल विल बी लाइक दिस इफ आई टॉक अबाउट द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये नियोपेंटाइल है, नियोपेंटाइल से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। नियोपेंटाइल ये है, ठीक है, ये नियोपेंटाइल है और ये कार्बोकेटाइन नहीं है। कार्बोकेटाइन हमेशा टर्सरी हो सकता है, क्वाटरनरी कार्बोकेटाइन इज नॉट पॉसिबल। सो इफ आई जस्ट प्लेस कार्बन एटम, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं, देन इट विल बिकेम व्हाट, इट विल बिकेम, इट इज डायरेक्टली अटैच विद 1 मोर कार्बन, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ये कार्बन आगे फिर अटैच है, तो ये फिर हमेशा जो नियोपेंटाइल है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि कार्बोकेटाइन कैसे कैसे बनते हैं। अब ये जो कार्बोकेटाइन बनते हैं, दे आर वेरी अनस्टेबल। वाई दे आर वेरी अनस्टेबल? बिकॉज ईच कार्बोकेटाइन, चाहे मिथाइल है या फिर यहाँ तक है, ये सारे के सारे क्या है, सेक्सटेट स्टेट पे, ठीक है। देयर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, दे आर ऑन द सेक्सटेट स्टेट, सो दे वांट टू रिएक्ट वेरी फास्ट, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी अनस्टेबल, तो बहुत जल्दी से आगे रिएक्ट करते हैं। और जितने ज्यादा कार्बन अटैच होते हैं उतना ही स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ती है। उससे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसको वो इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स। सो नाउ लेट्स सी दिस फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. So what they are saying, the carbocation are highly unstable and reactive species, alkyl group directly attached to the positive charge carbocation that stabilize the carbocation due to the inductive and hyperconjugation effects. ठीक है, ये that we will see later on what are inductive effects and what are hyperconjugation effects. The observed order of the carbocation stability is, which carbocation will be most stable? Tertiary carbocation will be the most stable. Carbocation, tertiary carbocation will be most stable, then secondary, then primary, then methyl cation. ठीक है, क्यों? These carbocation has the trigonal planar shape with the positive charge carbon cation and being that is sp hybridized. So before we talk about hybridization and the shape, let's discuss why the tertiary carbocation will be most stable instead of primary carbocation. Okay, that's the answer is there in the inductive and hyperconjugation effect. ये already NCERT ने लिख दिया है, but क्या होता है थोड़ा inductive effect वो हम समझते हैं. In this section, the NCERT has mentioned 12.7.4 where we will discuss about the inductive effect. Actually, what happens in inductive effect is, which is also given in 12.7.5, ठीक है, and in the 12.7.4 they have given all kind of electronic effect. So what happens under inductive effect is, if you see over here, if any substituent is attached, let me say it like this, if any substituent is attached to the carbon atom or a chain of carbon atom, then there will be the displacement of electrons. There will be the displacement of electrons because of influence of the different En or डिफरेंट चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन. तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये मिथाइल, इथाइल और आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल कैटाइन के अंदर, तो ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन जो बॉन्ड के अंदर ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इन बॉन्ड्स के अंदर एक इफेक्ट जनरेट होता है विच वी कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, एंड दिस इफेक्ट लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड इन दिस टर्सरी कार्बोकेटाइन ये जो चार्ज है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, डीलोकलाइज हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी डाउन हो जाती है. इसकी वजह से जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा
स्टेबल होता है कंपेयर टू द मिथाइल कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करने के लिए, एंड इसके पास 2 ही कार्बन, इसके पास सबसे ज्यादा कार्बन है, तो इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, दैट वी विल सी लेटर ऑन व्हेन while we will be discussing the inductive effect and hyperconjugations and resonance effect and that all. So यहाँ पे बस उन्होंने इनका नाम दिया है 12.7.5 के अंदर कि हम अगर ऑर्डर देखें स्टेबिलिटी का तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा, हाईएस्ट स्टेबल होगा, that will be this. Okay, so because of inductive effect and alkyl groups are having electron donating probability, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा stable है tertiary. Now we discuss about the resonance as well as the shape of the carbocation molecules. So these carbocations having trigonal planar shape. These carbocation has trigonal planar shape with positively charged cation carbon being sp2 hybridized, and thus the shape of CH3 cation may be considered as being derived from the overlap of 3 equivalent carbon sp3 hybridized orbitals. So क्या हो रहा है इसके अंदर, जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है इसकी जो शेप है वो एक्चुअली ट्राइगोनल प्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर है, एंड जो पॉजिटिवली चार्ज इसके ऊपर भी है, एंड दिस इज एक्चुअली sp2 जो हाइब्रिडाइज है कार्बन, जो 3 कार्बन है जो sp3 ओवरलैप हुई है, 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुई हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, कार्बन के अंदर 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की वजह से ऐसी शेप बनी है ट्राइगोनल प्लेनर। हाउ दिस शेप इज गेटिंग फॉर्म, लेट्स सी ओवर हियर विद 1s ऑर्बिटल्स ऑफ द ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता ही है कि 3 हाइड्रोजन हैं, तो हाइड्रोजन के पास 1s होती है, कार्बन के पास क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसकी जो शेप बनेगी दैट विल बी द प्लेनर शेप। तो इसकी जो शेप बन जाएगी मिथाइल कार्बोकेटाइन की शेप होगी द ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी। ठीक है, ईच बॉन्ड में भी रिप्रेजेंटेड बाय द sp2h